English first light, chapter 10, the proposal. As this chapter has been already completed through online class, one more time I would like to give you full explanation about this lesson for a good revision. So let us come again to continue this lesson, the proposal. In the previous video, you have read that proposal has several meaning, but in this chapter, the meaning of proposal is taken as a marriage proposal, शादी का प्रस्ताव. You are also well aware about the characters of this lesson. They are Lomo, a landowner, Chubuko, another landowner, both are the neighbors, and Natalia, a young girl of 25 years. She is the daughter of Chubuko, the neighbor of Lomo. This beautiful lesson is in front of us by a well-known Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. Dear student, as you have come to know that Anton Chekhov was from Russia and he was born on 29 January 1860, was died on 15th July 1904. Actually, he was a Russian physician. Later, he became the author, and he is considered to be among the greatest writer of short story in history. His career as a dramatist produced classic, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. The word proposal is having with several meaning, but here it is the proposal for marriage. So let us come to understand the whole lesson with some given points which you can see on the board. Full explanation through the following points. These are the points. So in this video class, we will discuss these points. In the next video, the remaining part will be continued. As this lesson is a one act play, एक एकांकी है जो स्टेज पर फिल्माई जा रही है. आइए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट पॉइंट. Lomo is received in Chubukov's house. The stage is ready. We see on the stage that Chubukov is sitting in his room. Then Lomo enters. Means it is Chubukov's house. Lomo enters. Chubukov meets him, as we do
whenever some guest comes to our house. In that meeting, Chubuko is extremely happy, very happy to meet with Lomo. Why? He asks him to sit down. Chubuko asks Lomo to sit down. He also asks him where he is going in his formal dress, in his evening dress. Second point, Lomo tells his purpose. When Chubuko asks the reason, Lomo replies that he has come to agree, he has come to see him with a request. He wants to say something more, as he has come to propose Natalia, but he hides it at that time. He wants to see the real reason for his coming to Chubuko, but meanwhile he excited. Chubuko feels that he has come to borrow money. Chubuko suspects that Lomo has come to borrow money. Lomo starts speaking, but he talks of his things. This thing or that things. इधर उधर की बातें वो करने लगता है. At last, Lomo says that he has come to ask Natalia's hand. Chubuko is greatly excited to listen this, as he is also worried about his daughter's marriage. चुबुको जब यह सुनता है कि लोमो उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हुआ है, तो काफ़ी खुश हो जाता है. क्यों? क्योंकि वह एक जवान लड़की का पिता है, उसे अपनी लड़की की शादी करने की चिंता है. चुबुको कंसेंट्स. थर्ड पॉइंट, चुबुको कंसेंट. कंसेंट यू नो, एग्रीमेंट, रजामंदी, स्वीकृति. Chubuko embarrasses and kisses Lomo with great love. He says that he always wanted this. What? He always wanted Lomo for his daughter Natalia. He is so happy that he behaves in some other way. You can say idiotically. एक इडियट जैसे बात करता है, उस हिसाब से चुबुको अपनी बात जारी रखना शुरू करता है. Lomo asks him if he should think that he gives his consent. Lomo चाहता है ये जानना कि क्या चुबुको को यह रिश्ता पसंद है. चुबुको accepts this. चुबुको इसे स्वीकार करता है. He tells Lomo that Natalia also is in love with him. चुबुको भी ये बताता है कि नतालिया भी ऐसा ही चाहती है. Because Chubuko is also well aware about the wealth and prestige of Lomo. He is the neighbor of Chubuko. Next point, Lomo thinks of Natalia and his own life. When Lomo comes to know that Chubuko is ready to give his daughter's hand to Lomo, Chubuko excitedly went out from there.
to inform about this to Natalia. Meanwhile, Lomov is alone in that room and he thinks about his own life and Natalia as his wife. So Lomov trembles due to great excitement. He says that if he looks for an ideal love, he would never get married. वो ये सोचता है कि अगर वह एक आदर्श पत्नी ढूंढेगा तो उसे जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, यानी उसकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके पीछे साफ बात है कि राइटर यहाँ ये बताना चाहता है कि लोमोव नताल्या को पूर्ण स्वीकृति के साथ, पूरे मन के साथ पत्नी के रूप में स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण वो यही बताता है कि अगर वह एक आदर्श पत्नी ढूंढेगा तो उसे कोई आदर्श पत्नी मिलने वाली है नहीं और वो जीवन भर बैचलर ही रह जाएगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। Meanwhile he gets cold. However, he feels that Natalia is a good housekeeper. He consoles his mind that Natalia is a good housekeeper. She is beautiful and well educated. He is already 35. Who is already 35? Lomov is 35-year-old. So he thinks that he should get married. He should lead a quiet and regular life, but he now has palpitation. Thinking this, he start behaving in some other way. Palpitation. Means he feels increase in his heartbeat because of so much excitement. He can't sleep. He starts jumping like a mad person. He feels like that. Then Natalia comes there. Natalia का वहाँ प्रवेश होता है. Natalia enters. She asked Solomon why he hasn't come there for a long time. कि वो ज़्यादा समय हो गया उससे मिले हुए, अब तक वो क्यों हम उसके घर नहीं आया। She tells him about the harvest. वहाँ अपनी बातों को बढ़ाते हुए नताल्या फसलों के बारे में चर्चा शुरू कर देती है। She asks him why he is in the evening dress. The same question Chubukov asked. She further asks if he is going to a ball. नताल्या ने पूछा कि तुम शाम की पोशाक में क्यों हो, क्या तुम किसी बड़े नाच पार्टी में जा रहे हो, बड़े ड्रामा देखने के लिए जा रहे हो। लोमोव स्टार्ट टॉकिंग ऑफ हिज लैंड। इस तरह से बातचीत का दौर शुरू होता है और लोमोव भी अपने जमीन के बारे में चर्चा शुरू कर देता है। लोमोव ट्राइज टू टेल हर द पर्पज बिहाइंड द विजिट। लोमोव वहाँ क्यों आया हुआ है इस बात को नताल्या से बताता है। कैसे बताता है? बताते बताते वह दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है, बट ही इज ऑफ द पॉइंट। ही वांट्स टू टेल फॉर व्हाट पर्पज ही हैड कम देयर, बट ही वेंट ऑफ। वो उस पाथ से भटक जाता है। जैसे हम कभी किसी मेन उद्देश्य को लेकर किसी के पास गए हुए होते हैं तो
पहले पहले हम उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, तो तमाम सारी भूमिका शुरू करते हैं। लाइक दैट ही टेल्स दैट ही हैज नोन हर फैमिली फॉर लॉन्ग। लोमोव हैज नोन नतालियाज फैमिली फॉर लॉन्ग। बहुत समय से उसके परिवार के बारे में वो जानता है। ही टेल्स हाउ ही इनहेरिटेड हिज लैंड एंड हाउ ही रेस्पेक्ट नतालियाज फादर। वो पीछे की बातों को शुरू करता है जो दोनों परिवारों के बीच में हुए रहते हैं। वो बताता है कि मैं आपके परिवार से बहुत नज़दीक हूँ और किस प्रकार से आपके परिवार की कुछ ज़मीनें पूर्वजों के द्वारा हमें मिली हुई थी। ये भी बताता है कि हाउ ही रिस्पेक्ट नतालियाज फादर। नतालिया के पिता यानी चुबुकोव का क्या स्थान लोमोव के दिल में है, इसके बारे में भी वो नतालिया को बताता है। ही ऑल्सो टेल्स हर दैट हिज ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज a kind of land, oxen charaga meadows touch Natalia's Bridgewood। वो बताता है कि उसकी ऑक्सन मीडोज नतालिया के बर्च वृक्षों के जंगल के साथ साथ लगी हुई है, यानी दोनों की जमीनें एक दूसरे से सटी हुई हैं। बट ही नेवर टेल्स दैट ही हैज कम टू प्रपोज टू हर। वो इन सब बातों में उलझ जाता है। वो ये नहीं बता पाता है कि वह शादी करने के उद्देश्य से आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लोमोव एक्सप्लेन्स द ओनरशिप। अब उस ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप पे चर्चा शुरू हो जाती है। हियरिंग दिस नतालिया गेट सीरियस। ऑक्सन मीडोज की बात जैसे ही लोमोव शुरू करता है, नतालिया उत्तेजित हो जाती है, गंभीर हो जाती है। शी टेल्स हिम that oxen meadows are not Lomov's but theirs। theirs means Natalia's family। वो बताती है तुम ऑक्सन मीडोज की बात कर रहे हो कि वो तुम्हें हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सन मीडोज हमारी है। लोमोव क्लेरिफाइज दैट ही इज रेफरिंग टू ऑक्सन मीडोज। लोमोव वहां कहता है कि अरे भाई मैं ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं, तुम शायद दूसरी जमीन की बात कर रही हो। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ऑक्सन मीडोज दैट आर माइन। दे आर बिटवीन हर ब्रिजवुड एंड द बर्न्ट मार्श। नतालिया सेज दैट दे आर नॉट लोमोव्स, दे आर आवर्स। लोमोव refuses it। Lomov rejects this। He says that his aunt's grandmother gave those meadows to Natalia's father's grandfather। लोमोव ये बताता है कि नहीं नतालिया, सच्चाई ये है कि लोमोव की दादी, चाची की दादी, लोमोव की चाची की दादी ने इन ऑक्सन मीडोज को नतालिया के पिता को दिया था। इसलिए ओनरशिप हमारी है। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years। लोमोव कहता है कि किसानों ने, अर्थात लोमोव यहाँ पर नतालिया के परिवार को एक किसान के रूप में संबोधित कर रहा है। ऐसा क्यों है? लोमोव अपने स्थिति को नतालिया के घर की स्थिति से ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा है। He tells that the peasants here means farmers used the land for 40 years। उसने कहा कि जब हमारी चाची की दादी ने यह जमीन तुम्हारे पिता के दादाजी को दिया था, उस समय उन्होंने इस जमीन का 40 सालों तक उपयोग किया। एंड विद द यूज ऑफ दिस कंटिन्यूअस 40 years they imagined that these were theirs।
उन्होंने सोच लिया कि ये जमीनें उनकी है, बट द रियलिटी इज नॉट दिस. द ओनरशिप ऑफ these oxen widows is ours. Lomov says like that. In this way, argument continues. झगड़ा जारी रहता है, बहस जारी रहती है on oxen widows. Natalia refuses Lomov's claim. जो भी क्लेम लोमोव लगाता है उसे नतालिया अस्वीकार करती है. She says that oxen widows are theirs. Lomov says that he will show the documents, but Natalia says that they had the land for nearly 300 years. नतालिया बताती है कि ये जमीनें 300 सालों से हमारे कब्जे में हैं. She can't stand unfairness. Though the widows are worth 300 rubles. वो बताती है कि इन ऑक्शन विडोज की वैल्यू हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है हमारे लिए, लेकिन बेईमानी उसे पसंद नहीं है. अगर कोई उससे मांग कर वह जमीन ले ले तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहे कि वो जमीनें उसकी हैं, ये उसे पसंद नहीं है. Lomov states that the peasants of Natalia's father's grandfather baked bricks for his aunt's grandmother. पुनः एक बार और नतालिया की फैमिली को नीचा दिखाने के लिए लोमोव ये कहता है कि नतालिया के पिता के दादाजी के जो किसान थे वे हमारी चाची के दादी के लिए ईंटें पकाते थे, ईंटें बनाते थे. अर्थात इन आर्गुमेंट से लोमोव नतालिया के परिवार को एक वर्कर शो करने की कोशिश करता है. इन दिस वे बोथ स्टार्ट फाइटिंग ओवर द ओनरशिप ऑफ द oxen widows. Lomov offers to make a present of them to Natalia. Meanwhile, their conversation, Lomov says that if you want, I can give you these oxen widows, but the ownership is mine. I am the owner of that oxen widows. But Natalia also says that she can make a present of them to him. नतालिया अपने आप को बड़ा करते हुए considering her reputation, Natalia tells that she can give the oxen widows to Lomov. In this way, shouting starts. Natalia gets angry. She comes to a low level. Low level here means she starts behave like a mean person. She start accusing Lomov पर वो दोष लगाना शुरू कर देती है, तरह तरह के दोष लगाना शुरू कर देती है. She says that they lent him their threshing machine. वो कहती है तुम क्या बड़े बनोगे, हम लोगों ने तुम्हें कई बार जरूरत पड़ने पर अपनी मड़ाई करने वाली मशीन तुम लोगों को दिया है जिससे तुम लोगों का काम चला है. Lomov feels that Natalia has called him a land grabber. अब लोमोव को अपने लिए खराब बात यह लगती है कि नतालिया ने उसे एक जमीन हड़पने वाला व्यक्ति बता दिया है, लैंड ग्रैबर बता दिया है, जो गैर कानूनी तरीके से दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेता है. He repeats that oxen widows are his. Natalia repeats they are theirs. They start shouting at each other. In this way, they continue use their arguments, over arguments on oxen widows. Meanwhile, Chubukov comes there and he takes the side of Natalia. As he is the father of Natalia, that's why he takes side of Natalia. He start
talking with the side of Natalia. Chubukov enters. Natalia asks him to tell Lomov that oxen meadows are theirs. Being the father and owner of his family, she thinks that Chubukov could confess, Chubukov could clear what is the reality, and Lomov refuses this. Chubukov clarifies that by shouting Lomov won't prove the ownership. Chubukov कहता है कि Lomov झगड़ा करने से तुम इस जमीन का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकते. He accuses Lomov of speaking disrespectfully as he is twice of his age. Chubukov warns Lomov that Lomov should not speak like that. Lomov should not speak disrespectfully because Chubukov is twice of Lomov's age. वो कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र से दुगने उम्र का हूँ, तो बड़ों का ख्याल करते हुए भी तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए. Lomov adds, the good neighbors don't behave like that. इस पर Lomov भी उग्र होकर कहता है कि ठीक है, आप को भी एक अच्छे पड़ोसी के तरह ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. ये एक अच्छे पड़ोसी का व्यवहार नहीं है कि अपने घर बुलाकर किसी चीज़ के मालिक को उस से बेदखल साबित किया जाए. एट द सेम टाइम ही कॉल्स चुबुकोव ए लैंड ग्रैबर. उसी समय Lomov चुबुकोव को षड्यंत्रकारी बताता है, दूसरों की जमीन को गैर कानूनी रूप से कब्जा करने वाला बता देता है. यह एक प्रकार का बेइज्जती है चुबुकोव के लिए. एब्यूजेज एक्सचेंज. इस तरह से एक दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण जारी रखता है. Lomov threatens to take Chubukov to courts. Lomov says that he would take him to the court. कहता है कि मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा. In order to prove that oxen meadows are not yours, these are mine. They exchange abuses, calling that Lomov's grandfather was a drunkard. इस तरह से आरोप प्रत्यारोप आगे ही बढ़ता चला जाता है. Lomov को नीचा दिखाने के लिए चुबुकोव बोलता है कि तुम्हारे दादाजी एक पियक्कड़ व्यक्ति थे, ड्रंकर. One who drinks. His younger aunt Natasha ran away with an architect. एक और बेइज्जती बोलता है कि तुम्हारी नौजवान चाची नताशा एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी. In this way, they accuse Lomov. Lomov wants to say something, but he feels that he is dying. Meanwhile, he feels palpitation one more time in his body. He says so. In this way, accusation continues. झगड़ा जारी रहता है, दोषारोपण जारी रहता है. Natalia calls Lomov a rascal. Natalia calls Lomov a rascal. Rascal, you know, scoundrel, बदमाश कहती है. Chubukov calls him the villain. Chubukov उसे villain तक कह देता है. And the scarecrow, दानव कह देता है. He calls him a monster who has the courage to propose. यहाँ तक कि दोषारोपण के क्रम में लोगों को तमाम भद्दी बातें कह दी जाती हैं और ये कह दिया जाता है कि तुम एक बदमाश, एक डरावनी सूरत रखने वाले व्यक्ति, स्केयरक्रो हमारी लड़की से शादी करने आए हो. Chubukov tells the purpose behind Lomov's visit. इस तरह से दोषारोपण करते हुए लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं
लोमो बाहर निकलने के क्रम में होता है। उसी समय चुबुको नतालिया से ये बताता है कि लोमो के आने का वास्तविक कारण क्या था। चले जाने पर नतालिया पूछती है कि पापा ये कैसे यहाँ आ गया था, तो लोमो के आने का वास्तविक कारण चुबुको बताता है कि वह शादी के प्रस्ताव को लेकर आया है। हियरिंग द वर्ड प्रपोज, नतालिया आस्क्स व्हाट प्रपोजल, किस बात का प्रपोजल। चुबुको टेल्स हर दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज टू हर फॉर मैरिज। हियरिंग दिस शी स्टार्ट्स वीपिंग। Who starts weeping? Natalia starts weeping. She calls Chubuko to bring him back. She calls her father to go and call Lomo at once. And she is in hysteric. इस समय वो एक उन्माद में आ जाती है। He laments that it is a great burden to be a father of a grown up daughter. इस समय चुबुको काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक जवान लड़की का पिता होना बहुत बड़ा बोझ है। फाइटिंग ओवर डॉग्स। वन मोर टाइम लोमो विंटर्स and they continue some other topic. This time the topic starts on the dogs. Both had dogs. Lomo has a palpitation heart. Natalia begs to be excused. जब लोमो चुबुको के द्वारा बुलाए जाने पर पुनः एक बार कमरे में आता है तो नतालिया उसे सॉरी बोलती है और बैठ जाने के लिए बोलती है। She tells him that the meadows are his. बोलती है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑक्सन meadows are yours. The talk now enters on dogs. अब बहस का मुद्दा बन जाता है कुत्ता। Lomo tells Natalia that his best dog Gus cost him 125 rubles. इस बार जो बातचीत का दौर शुरू होता है वो सीधे कुत्तों पर शुरू हो जाता है। लोमो नतालिया को ये बताता है कि उसका जो कुत्ता है गैस, उसका दाम 125 रूबल है। यानी इतने महंगे कुत्ते के द्वारा वो अपनी हैसियत को नतालिया के सामने बताने की कोशिश करता है। He wants to tell his high profile society and prestige in the society. Natalia calls it too much as her father gave 85 rubles for his speecher. नतालिया कहती है कि ये तो बहुत महंगा कुत्ता है, 125 रूबल का कुत्ता कौन पालने जाएगा। मेरे पिताजी हमारे स्पीजर को मात्र 85 रूबल में खरीदे थे। स्पीजर इज बेटर देन हिज डॉग। और तुम्हारे कुत्ते से हमारा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। Lomo refuses it. Lomo did not accept it. He states that big lower jaws is shorter than the upper. He states that his lower jaw is shorter than the upper. जैसा कि मैंने बताया बहस कुत्तों पर जारी हो गई थी, तो स्पीजर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे स्पीजर का जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है, वह ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नतालिया defeat saying that their speaker is of the finest pedigree. Pedigree here means प्रजाति। नतालिया कहती है कि नहीं, उसका जो स्पीजर है वो एक अच्छी नस्ल का है। फाइटिंग कंटिन्यू। जिस तरह से कुत्तों पर अभी बहस जारी रहती है, बोथ लोमो एंड नतालिया स्टार्ट फाइटिंग ओवर देयर डॉग्स विथ new arguments. Lomo calls his guest better. Natalia calls her squeezer better. Lomo heart get palpitating. फिर से लोमो का जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जा रही है। He says that his heart is going to
pieces. Chubukov enters. Meanwhile, Chubukov again enters. He asked, "What is the matter? Why are you fighting?" Chubukov also adds that Lomov dog guess is cold and short. कारण पूछते हुए, कारण जानने के बाद चुबुकोव भी इस बात पर रजामंदी व्यक्त करता है कि गेस बूढ़ा है, यानी लोमोव का जो कुत्ता गेस है वो बूढ़ा है और कद में छोटा है। इस प्रकार बहस जारी रहते हुए व्यक्तिगत दोषारोपण का दौर पुनः चल उठता है। पर्सनल एक्यूजेशंस continues. Lomov cites some facts for his dog superiority. Lomov tries his level best to show that his dog guess is best. In that, Squeezer was left behind. जो पॉइंट्स लोमोव अपने कुत्ते के लिए बताता है, उन पॉइंट्स के आधार पर स्क्वीजर उससे कम वैल्यू का सिद्ध किया जाता है। डॉग्स रैन व्हाट स्क्वीजर रैन आफ्टर ए सी। अब वहाँ वो कहता है कि तुम्हारा कुत्ता पिछली बार की रेस में पीछे छूट गया था। जब सभी कुत्ते दौड़ने लगे तो तुम्हारा कुत्ता एक भेड़ के पीछे लग गया था। ये भी एक प्रकार की बेइज्जती थी। इट वाज ए काइंड ऑफ इंसल्ट फॉर नतालियाज फैमिली। लोमोव स्पीक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज हर्ट। नतालिया आस्क्स हिम व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर ही इज। कुत्तों के बाद दूसरी बात शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुम किस प्रकार के शिकारी हो। ही शुड गो टू द किचन एंड नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस। तुम्हें लोमड़ियों का शिकार करने नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें किचन में जाकर खाना बनाना चाहिए। अर्थात तुम शिकार करने के योग्य नहीं हो। यू आर नॉट एबल इनफ फॉर हंटिंग। अगेन एब्यूजेज हर डर्ट। गालियों की बौछार अब होने लग रही है। एक दूसरे पर पुनः दोषारोपण शुरू हो जाता है। चुबुकोव साइड्स अगेन विथ नतालिया। ही एड्स दैट लोमोव शुड सिट एट होम। चुबुकोव भी बोलता है कि लोमोव को घर में बैठ जाना चाहिए। ही चेंजेज द सब्जेक्ट टू अवॉइड लॉसिंग हिज टेम्पर। लोमोव अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए मैटर बदलना चाहता है। लोमोव एंड ही एक्सचेंज एब्यूजेस कॉलिंग वन अनदर इंट्रीग्यूअर। इस तरह से चुबुकोव और लोमोव एक दूसरे पर व्यक्तिगत दोषारोपण पुनः शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को धोखेबाज, पप पिल्ला कह देते हैं, रैट चूहा तक कह देते हैं। लोमोव टेल्स दैट चुबुकोव्स लेट वाइफ बीट हिम। लोमोव यहाँ तक कहता है कि तुम बहुत बड़े बनते हो, तुम्हारी जो पहली पत्नी थी तुम्हें पीटा करती थी। इट वॉज ए बिग इंसल्ट फॉर चुबुकोव एंड सेइंग दिस लोमोव फॉल्स डाउन। वहीं पर वो गिर जाता है। लोमोव्स फिजिकल कंडीशन। नतालिया आस्क्स हर फादर व्हाट हैज हैपेंड टू लोमोव। जैसे ही लोमोव गिर जाता है, नतालिया अब पुरानी बातों को छोड़कर पुनः अपने पिता से पूछती है कि पापा इसको क्या हो गया है। चुबुकोव आल्सो फील सिक एज ही कैन नॉट ब्रीथ। हु कैन नॉट ब्रीथ? लोमोव कैन नॉट ब्रीथ। लोमोव गिर जाने के बाद सांस भी नहीं ले पाता है। दोनों नतालिया और चुबुकोव परेशान हो जाते हैं। Chubukov asks what the matter is. Natalia says that Lomov is dead. At this, Chubukov calls for water and a doctor. यह देखते हुए चुबुकोव तुरंत एक डॉक्टर को बुलाता है और पानी लाने के लिए बोलता है। Chubukov as a father and his helplessness. अब वहाँ पर चुबुकोव क्या दिखाता है? एक पिता के रूप में चुबुकोव अपने आप को बता रहा है और किस तरह से वो असहाय है ये बताने की कोशिश कर रहा है। चुबुकोव स्टार्ट एक्यूजिंग हिमसेल्फ। अपने
ऊपर ही दोष लेता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन। वो कहता है कि आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन ऑन द अर्थ एज आई एम द फादर ऑफ ए यंग गर्ल। ही डिमांड्स फॉर ए नाइफ और ए पिस्टल टू एंड हिज लाइफ। लोमोक इज रिवाइविंग। यह चीज़ सुनते हुए लोमोक धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। चुबुकोव कॉल्स देम टू मैरी। जैसे ही लोमोक नॉर्मल अवस्था में आता है, चुबुकोव ये बोलता है कि अब तुम दोनों शादी करो। लोमोक सेज ही सीज स्टार्स। लोमोक कह रहा है मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। ही आस्क्स वेयर ही इज, बिकमिंग अननोन अबाउट ऑल द थिंग्स। ही सेज दैट ही इज वेयर। चुबुकोव आस्क्स हिम टू हरी अप एंड गेट मैरिड। चुबुकोव उसी समय बोलता है कि हरी अप, गेट अप एंड गेट मैरिड। नतालिया इज आल्सो विलिंग टू मैरी लोमोक। Chubukov asks them to kiss each other as it is the custom of the wedding in Russia. Lomov asks whom he should kiss. Then Chubukov says that what to do. Natalia is also happy with this. Chubukov feels that a weight has come off his soldiers. When the proposal is fixed, Chubukov acted that a weight has come off. एक भार उसके सिर से उतर गया है, उसके कंधों से एक भार उतर गया है, एक बोझ हट गया है। He offers some champagne for this occasion. और उसके बाद वह शैम्पेन की पेशकश करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि रसिया की शादी कैसी होती है। तो इन दिस वे दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। बिफोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज रीड 2 or 3 times the whole lesson in actual word which are given in the textbook. After that watch this video. It would be very beneficial to you in order to understand this lesson. In the next video, we will discuss the question answer along with the passage comprehension. Thank you all.